you all in my surgery online class, and today we will discuss about the topic hyperparathyroidism. So what happens in hyperparathyroidism? First we have to understand what are parathyroid glands. So parathyroid glands are endocrine glands which secrete a hormone PTH, which is parathormone. And this endocrine glands are 4 in number. There are set of 4. So this is tongue, this is trachea here, this is trachea, and this is what? Thyroid gland. So behind the thyroid gland there are 4 sets of gland. This is parathyroid, this is parathyroid gland, endocrine gland. These are 4 in number. This superior is known as 4th parathyroid, and this inferior, 2 are superior and 2 are inferior. So the superior ones are known as 4th parathyroid and the inferior ones are known as 3rd parathyroid glands. So why this is so called? Because this 4th parathyroid gland, these 2 superior ones are formed or composed or formed by the 4th pharyngeal pouch. 4th pharyngeal pouch. So this is formed by the 4th pharyngeal pouch. So that's why this both superior glands are known as 4th parathyroid gland, and this both inferior are called 3rd parathyroid glands because these are formed by the 3rd pharyngeal pouch. So that's why according to the name. Now this 2 superior 4th parathyroid glands, this lies behind the recurrent laryngeal nerve, and this inferior parathyroid gland lies in front of recurrent laryngeal nerve. तो पहले जो है recurrent laryngeal nerve पीछे है और फिर बाद में आगे आ जाती है इन दोनों पैराथायराइड जो inferiorly है parathyroid gland. Now this parathyroid glands, these are total 4 in number, and each weighs approximately 40 to 50 mg, and the blood supply of this all 4 parathyroid gland is by the inferior thyroid artery, and this parathyroid gland is formed of oxyphil cells, means water cells. This parathyroid gland is composed of oxyphil cells, and each parathyroid gland weighs approximately 40 to 50 mg, and its blood supply is by inferior thyroid artery. Now what is the function of this parathyroid gland? These are very important endocrine gland. This secretes PTH, that means parathormone, which helps in metabolism of calcium. So this parathormone helps in the metabolism of the calcium. कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम को नॉर्मल लेवल पे रखने का काम करता है ये पीटीएच जो सिक्रीट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से. पैराथायराइड ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, लाइज बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड. दिस आर 4 इन नंबर. नाउ जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है तो ये पीटीएच क्या करता है? ये एक तो रीअब्सॉर्ब करता है, reabsorption of calcium by the renal tubules. अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करेगा रीनल ट्यूब्यूल से, देन अब्सॉर्प्शन करेगा कैल्शियम का बाय द गट. तो अच्छे से कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन करेगा गट के थ्रू,
अगर कमी हो रही है तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा रीनल ट्यूब्यूल से, एंड अगर सीरम और ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है तो मोबिलाइज करेगा बोन से। तो मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। तो अगर पीटीएच ज्यादा सिक्रीट होगा, इफ देयर इज मोर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, देन देयर विल बी मोर फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा ब्लड एंड सीरम में। सो टुडे वी विल डिस्कस द डिजीज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर क्या हो रहा है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो ज्यादा सिक्रीट कर रहे हैं पीटीएच, एंड पीटीएच इज व्हाट? पीटीएच इज अ हार्मोन विच हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। तो ज्यादा पीटीएच सिक्रीट होगा तो ज्यादा कैल्शियम होगा, हाइपर कैल्सीमिया, ज्यादा कैल्शियम बढ़ेगा। नाउ व्हाट इज द रीजंस और द etiology? There are many reasons, and hyperparathyroidism is categorized into primary, secondary and tertiary according to the reasons. So I am taking a very brief for this. Maybe the reason adenoma अगर formed हो गया है, या hyperplasia है gland के अंदर, hyperplasia, then this hyperplasia and adenoma will do what? This will secrete more PTH and more calcium secretion will occur. More calcium secretion will occur means there will be hypercalcemia, more calcium in the serum. So this adenoma, hyperplasia, or could be the reason like malabsorption. Then rickets could be the reason. Then presence of carcinoma. This is very rare reason, presence of carcinoma. So there are various reasons for the hyperparathyroidism. Now we will discuss the clinical features. What are the clinical features in hyperparathyroidism? So there will be many clinical features. First, there will be changed behavior patterns in the patient. Psychiatric manifestations आएंगे, जो behavior patterns है पेशेंट के वो चेंज हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, एंड ज्यादा कैल्शियम सिक्रीशन हो रहा है, ज्यादा कैल्शियम बन रहा है, तो किडनी के अंदर क्या होगा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस मीन्स मोर कैल्शियम इन द किडनी, एंड जब किडनी के अंदर मोर कैल्शियम है तो दैट विल लीड टू द रीनल फेलियर, दैट कुड लीड टू द रीनल फेलियर। देन मोर कैल्शियम आ रहा है तो किडनी के अंदर क्या होगा, स्टोन्स बनेंगे, किडनी स्टोन्स। दिस कुड बी यूनिलेटरल और bilateral or multiple stones formation or recurrent stone formation in the kidney. Nephrocalcinosis means more calcium in the kidney that will lead to the renal failure. Then there is a disease known as von Reckling-Husson disease. इसके अंदर क्या होता है, there is formation of pseudo tumor and multiple cysts in the phalanges, in the skull or in the jaw. तो बहुत सारे मल्टीपल ट्यूमर्स एंड स्यूडो ट्यूमर्स एंड सिस्ट मिलेंगे वॉन रेकलिंग-हसन डिजीज के अंदर। देन बिहेवियर पैटर्न्स चेंज मिलेंगे, पेशेंट बिहेवियर पैटर्न चेंज्ड, ठीक है। साइकोलॉजिकली मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, अल्टर्ड मूड स्विंग्स मिलेंगे। देन ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि जो कैल्शियम है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, बोन से भी ज़्यादा मोबिलाइज होके, क्योंकि क्या करता है पीटीएच, मोबिलाइज करता है बोन से सीरम एंड ब्लड की तरफ, तो बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस। देन बोन्स के अंदर भी खूब सारे सिस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स हो सकता है, बोन डिफॉर्मिटी हो सकती है। देन बिसाइड दिस
Beside this, ग्लाइकोसूरिया, ब्लड यूरिन में ज्यादा ब्लड शुगर निकलेगा, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन पास होगा। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एंड कैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, जो यूरिन है वो पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, देन बैकएक एंड अदर फीचर्स कुड बी प्रेजेंट। देन बिसाइड दिस पैक्टिक अल्सर, पैंक्रियाटाइटिस एंड मैन syndrome, Man-1 syndrome, this also could be associated। तो जो मेन कोर है उस डिजीज का, हाइपरथायराइडिज्म का, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पीटीए ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। इट इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड विच इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दिस इज कॉजिंग व्हाट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, जो रेगुलेट करता है। तो हाइपर अभी क्या हो रहा है, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ज्यादा कैल्शियम बनेगा बॉडी में एंड ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया, किडनी के अंदर स्टोन्स फॉर्मेशन हो रहा है। एक चीज और आएगी, दिस इज द टूथ के अंदर सबसे पहले चेंजेस दिखेंगे। टूथ में सबसे पहले चेंजेस नोट करने में आएंगे। बोन्स के अंदर क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो ट्यूमर एंड सिस्ट in the bones, osteoporosis, then weakness of the bones, arthralgia, myalgia. This will be the associated complaints. Now in investigations, we will do what, हम देखेंगे सीरम में कैल्शियम ज्यादा है, हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, मोर देन 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। जब कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा सीरम के अंदर, देन अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये भी ज्यादा मिलेगा, फॉस्फेटेस ये भी सीरम के अंदर ज्यादा हो जाएगा। देन पीटीएच, दिस इज व्हाट, पैराथार्मोन, पीटीएच भी ज्यादा मिलेगा सीरम के अंदर। तो सीरम के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेस, कैल्शियम एंड पीटीएच हार्मोन, ये ज्यादा सीरम के अंदर मिलेगा, बट लो फॉस्फोरस मिलेगा। सो जब फॉस्फोरस लो हो रहा है एंड कैल्शियम ज्यादा हो रहा है सीरम में, तो स्किन नेक्रोसिस भी हमें क्लिनिकल फीचर्स में दिखता है कितनी बार। देन बिसाइड दिस, जब एक्सरे करवाएंगे तो स्कल के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ अपीयरेंस दिखेगा विच इज नॉन एज सॉल्ट एंड पेपर स्कल अपीयरेंस, सॉल्ट एंड पेपर स्कल अपीयरेंस। एक्सरे स्कल कराएंगे, देन एक्सरे फेलेंजिस करवाएंगे, फेलेंजिस के अंदर भी चेंजेस नोट करेंगे, स्कल के अंदर भी चेंजेस मिलेंगे जो कि पेपर एंड सॉल्ट अपीयरेंस मिलेगी स्कल में। जॉ का भी एक्सरे कराएंगे। बिसाइड एक्सरेज we will go for MRI and CT scan of the neck and mediastinum, वहां पे चेंजेस नोट करेंगे। देन एंजियोग्राफी एंड वीनस सैंपलिंग। So these are the investigations. Also we will do the ultrasound to look for the changes in the kidney and stomach, pancreas, क्योंकि pancreas में क्या होगा, pancreatitis, peptic ulcer होगा स्टमक में। देन किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे एब्डोमेन। सो दिस आर द इन्वेस्टिगेशंस। नाउ इन ट्रीटमेंट वी विल गिव द मेडिसिन, जिसके अंदर हम मेडिसिन जो देंगे, कैल्सिटोनिन देंगे, देन मिथ्रामाइसिन देंगे, एंड बिसाइड दिस रिलॉक्सिफेन, कैल्सिटोनिन, रिलॉक्सिफेन एंड मिथ्रामाइसिन। मिथ्रामाइसिन इज हेपेटोटॉक्सिक, मीन्स
लीवर के लिए डेंजरस है, तो हम जनरली इस मेडिसिन को अवॉइड करते हैं, मिथ्रामाइसिन को। बट मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता है जनरली। अगर माइल्ड हाइपरथायराइडिज्म है, मीन्स पीटीएच हार्मोन अगर थोड़ा बहुत सिक्रीट हो रहा है तो ठीक है, बट अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडेनोमा, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं पैराथायराइड को। अब उसमें भी अगर देर आर 4 सेट्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, सुपीरियरली 2 हैं, इंफीरियरली 2 हैं, तो अगर कोई एक है, किसी एक में एडेनोमा है तो हम एक को हटा देंगे। कितने केसेस में अगर कार्सिनोमा है तो हम आफ्टर ऑपरेटिंग वी विल गो फॉर द रेडियोथेरेपी। बट अगर चारों में ही अगर कुछ ऐसा है, चारों में ही, चारों पैराथायराइड ग्लैंड्स में, तो हम चारों को हटा देंगे। तो हम जब ये रिमूव करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड को, इसको बोलते हैं पैराथायरॉइडेक्टोमी, पैराथायरॉइडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड।